ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁଷମାଚାର ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁଷମାଚାର ତାର 15 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 8 ପଦର ଶେଷ ଯାଏ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ପୁଣି ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ମୋଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥି ଯୋଗୁଁ ତୁମେମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ସାରିଅଛ। ମୋଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜରୁ ଫଳ ଫଳି ପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଠାରେ ନ ରହିଲେ ଫଳ ଫଳି ପାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମେମାନେ ଶାଖା। ଯେ ମୋଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। କେହି ଯେବେ ମୋଠାରେ ନ ରହେ ତାହେଲେ ସେ ଶାଖା ପରି ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ ଶୁଖିଯାଏ। ପୁଣି ଲୋକେ ସେଗୁଡାକ ଏକାଠି କରି ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡାକ ପୋଡିଯାଏ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ମତେ ପୁଣି ଆମର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲିଙ୍କରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଏନ୍ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ ଏବଂ ମୋତେ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଫାଷ୍ଟ ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ এই বিশেষ সুযোগ নিমন্তে। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ବହୁତ ବିଜି ଥିଲି। ରାତି 9ଟା 9:30ରେ ଫେରିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ସିଷ୍ଟର କହିଥିଲେ ମୋତେ, ଗୁଡି ସିଷ୍ଟର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଲି ସମୟ ଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ରାତିରେ ପୁଣି ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁଷମାଚାର ତାର 15 ପର୍ବରୁ 1 ପଦରୁ 8 ପଦର ଶେଷ ଯାଏ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ପଦକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି। ଆଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଯାହାକି ଶେଷ ପଦଟି ଯାହା ମୁଁ ପଢିଥିଲି ପୁଣି ଥରେ ପଢି ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଫଳ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଣ ହେବେ? ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଖୁସି ହେବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ତ ଆମେ ଯଦି ଜାଗତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କୃଷକ ଯଦି ନିଜେ ଗୋଟେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଅଛି, ସେ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, କିଛି ଭରସା ନାହିଁ, କି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ, କିଛି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଆଶାରେ, ଉପକୃତ ହେବା ଆଶାରେ, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଚାରାଟିଏ ଗଛଟିଏ ବୃକ୍ଷଟିକେ ସେ ରୋପଣ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ବଢି ଯାଉଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ଫଳ ପାଇବାର ଯୋଉ ଆଶା ରଖି ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛି, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ସେବା କରୁଅଛି, ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଅଛି, ତତ୍ପ ନେଉଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି, ଯଦି ଫଳ ନ ଫଳୁଛି ବା ଫଳ ଫଳି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କୃଷକ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଫଳଟି ରୋପଣ କରିଥିଲା ତାହା ଯେତେବେଳେ ତାର ସେ ପାଇପାରି ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେବ, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତ କିଛି ସମୟ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରେ, ଆଉ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିପାରେ, ଯତ୍ନ ନେଇପାରେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ସେ ଫଳ ଫଳିପାରେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯଦି
ଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ କୃଷକ ସେ କଣ କରେ ନା ଯଦି ଫଳ ନ ଫଳିଲା ତାହେଲେ ସେ ଗଛକୁ ସେ କଣ କରେ ଉପାଡ଼ି ଦିଏ ବା କାଟି ଦିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛ ରୋପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏହା ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଶାଖା ବା ପ୍ରଶାଖା ବି ଯଦି ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୃକ୍ଷରୁ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପଛାଏ ନାହିଁ। ତଦ୍ରୂପ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଛୁ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ କେଉଁ ଫଳ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଆମମାନଙ୍କ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ଫଳ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦାକ୍ଷାଲତା ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦାକ୍ଷାଲତା, ଆମର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷକ, ଆମମାନେ ହେଉଛୁ ଶାଖା ଏବଂ ପ୍ରଶାଖା। ତ ଆମେ ଯଦି ଶାଖା ଏବଂ ପ୍ରଶାଖାରେ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ବା ଯୋଜନା ନେଇ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଫଳ ନ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଫଳ ନ ଫଳିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗତିକ କୃଷକ ଯେପରି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାକୁ କାଟିଦିଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦ୍ରୂପ ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କାଟି ପକାଇବେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ହୁଏତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ ଆମେ ଫଳ ଫଳି ନାହୁଁ, ତଥାପି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କାଟି ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅଧିକ ଫଳ କିପରି ଫଳିବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଦେଖିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ପଢିଲା ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଯୋଉ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଏ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ କଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଫଳଟା କଣ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଫଳ କଣ ଅଟେ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁଷମାଚାର ଯେ ତାର 1 ପଦରେ ଯେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟର ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଫଳ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ହେଲା ବାକ୍ୟ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଭରସା ନାହିଁ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ରହିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଆଦ୍ୟରୁ ଯେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ ଓ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛୁ, ସେହି ଜୀବନ ରୂପ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଅଛୁ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଫଳ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ଫଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯାହାକି ସେ ଯୀଶୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ, ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ହେଲା ଆମଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଯେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବ। ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବ
तेणु वाक्यर निहाती आवश्यक रही। तेणु ईश्वर अनंत कालीन स्थायी वाक्य आम जदि विश्वास करवा एवं ए दिन प्रतिदिन जदि बुद्धि लाभ करी आम जीवन यापन जदि करवा ताले निश्चित भाव में परमेश्वर आम को देखी खुशी हेबे। यह है प्रथम फल। ये फल निहाती आम जीवन रही आवश्यक अच्छी। कारण प्रेरित 4:12 पदरे लिखा जाए जे जीशु ख्रीष्ट छड़ा कहाठारे परित्राण नहीं। अर्थात ए वाक्य द्वारा ही आम परित्राण प्राप्त होगा। ए वाक्य द्वारा ही आम पाप क्षमा हेब। ए वाक्य द्वारा ही आम विश्वास बधिष्ठ होगा। ए वाक्य द्वारा ही आम अनंत जीवन अधिकारी हेबा। तेणु वाक्य है प्रथम फल। प्रिय बंधुगण आम जदि देखा कलिश 3 सुर लिखा जाए ख्रीष्ट प्रचुर वाक्य प्रचुर भाव में तुम निकट में बास कर। और एठार लिखा जाए तुम जदि प्रचुर फल फलिले पिता महिमान्वित हे। जीशु कहले तुम जदि प्रचुर फल फलिले पिता महिमान्वित हे। तो प्रचुर फल मध्य प्रथम फल आम जीवन है वाक्य। आउ से वाक्य आम जीवन में प्रचुर भाव में रही आवश्यक रही। कि भाव में आम जहाँकि प्रथम जोहन तार 1:1 आम देखिलु जे जो वाक्य आम जीवन में आम जहाँ शुणी अच्छु देखी अच्छु परखी अच्छे निरीक्षण कर से वाक्य अनुसार आम जदि दैनंदिन जीवन में आम जदि अतिवाहित हेबा दैनंदिन जीवन वाक्य अनुसार जदि आम जीवन यापन जदि करवा ताहेले निश्चित ऐसे निश्चित भाव में परमेश्वर देखी आम को खुशी हेबे। कारण जोहन 3:16 मध्य लिखा जाए जे जोहन 5 एवं 24 पद लिखा जाए जे जो मैंने परमेश्वर विश्वास परमेश्वर जीशु वाक्य उपर विश्वास करती बा परमेश्वर वाक्य उपर जो मान विश्वास थाए से माने अनंत जीवन अधिकारी हमें। तेणु वाक्य निहाती आम जीवन प्रथम फल हबार आवश्यक रही। एवं ए वाक्य अनुसार आम जदि जीवन यापन काटिबा ताले निश्चित भाव में आम जीवित परमेश्वर आमको देखिए निश्चित भाव में से महिमान्वित हेबे। यह प्रथम विषय। द्वितीय विषय आम ये देखा जे तो आउ द्वितीय विषय आम जीवन में कौ कौ फल आवश्यक रही आवश्यकता रही। द्वितीय विषय है प्रिय बंधुगण आत्मा जो फल आम जीवन में अच्छी से फल निहाती भाव में आम जीवन में रही निहाती आवश्यक रही। जहाँकि आम मैंने पाइपर गालतीय 5:22-23 रे जोटा कि आत्मा फल प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता भद्रता विश्वस्तता मृदुता और आत्मसंयम यही समस्त विरुद्ध कौन व्यवस्था नहीं। गोटे विश्वासी जीवन में जदि ये समस्त फल जदि गोटे विश्वासी जीवन में जदि ये आत्मा फल जदि परमेश्वर जदि देखा पाइबे ना कारण से कही अच्छा मोहर पिता जदि प्रचुर फल जदि तुमने जदि प्रचुर फल फल ताले मोहर पिता महिमान्वित हेले। यही फल गुड़िक जदि आम जीवन जदि परमेश्वर देखिए ना यही फल गुड़िक जदि आम जीवन जदि न रही आम जीवन परमेश्वर महिमान्वित हेबे ना। तेणु यही फल गुड़िक निहाती आम दैनंदिन जीवन में निहाती आवश्यक रही। जहाँकि आम गालतीय 5:22-23 पद आम देखला जे जो आत्मा फल 9टी फल अच्छी प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता भद्रता विश्वस्तता मृदुता और आत्मसंयम ये समस्त विरुद्ध कौन व्यवस्था नहीं। तो ये समस्त फल निहाती गोटे विश्वासी जीवन में रही आवश्यकता रही। ये समस्त विषय जदि आम जीवन जदि ना ताले निश्चित भाव में परमेश्वर जे आशा बा जो भरोसा बा जो विश्वास नहीं आम पृथ्वी पृष्ठ जन्म दे पर्यंत आम अनुग्रह हस्त तले आवरी रखी दैनंदिन जीवन में जो प्रथम फल वाक्य द्वारा से आम को आहरी विशेष बधिष्ठ होगा निमंते वाक्य आत्मार बधिष्ठ होगा निमंते जो परिश्रम करुँच जो परिष्कार करुँच वृथा हो। अरे ये समस्त फल जदि आम निकट में से दैनंदिन जीवन में देखिए ये फल को नहीं आम जो अन्य मान निमंते जदि बंचीबा ये समस्त विषय जदि से आम जीवन जदि उपलब्धि करेंगे ताले निश्चित भाव में परमेश्वर महिमान्वित हेबे। यदि देखिए ना
ए समस्त फल जदि आम निकट जदि न रहिबो ताहेले से दिन जोहन पुस्तक आम जपरी अध्ययन कला जे जो शाखा जी फल न फले ताहेले से कौन करती काटी पकाती आ निश्चित भाव से जो आशा एवं भरोसा नहीं आज पर्यंत आम को आद्य प्रेम आद्य विश्वास बजे रखी शेष दिन से निश्चित भाव शाखा जपरी फल न फल से जपरी मैंने गोटे कृषक काटी पकाए निश्चित भाव से आम को काटी पकाइबे। प्रिय बंधुगण ए समस्त आत्मा फल आम जीवन निहाती आवश्यक रही अछि। तो आम देखू ए दिन मानक आम जो तृतीय फल देखा से आम जीवन चाहती जहाँकि आम रोमियो पुस्तक 12 पर्वर 1 पद को आम देखुवा अतएव हे भाई माने मु तुम मान को ईश्वर को दया हेतु विनती करुअछि तुम्हें माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वर को सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर यह तो तुम मान युक्तियुक्त उपासना। आम तृतीय फल विषय चिंता करुअछु जे आम युक्तियुक्त उपासना यह फल आम जीवन रहा आवश्यक रही है। युक्तियुक्त भाव में जदि आम उपासना परमेश्वर उपासना करूना तुई एक परमेश्वर निकटवर्ती हो पारुना युक्तियुक्त भाव में जदि आम परमेश्वर उपासना अनुसार आम निजक जदि व्यवहार कर पारुना आम जीवन जदि परिचालित होना सत्य और आत्मा जदि आम उपासना करूना आत्मा किसी फल जदि आम जीवन जदि ना जदि वाक्यर कलसी 3:16 जपरी लिखागला जे तुम मान निकट ईश्वर वाक्य प्रचुर परिमाण में रहू ये सब फल गुड़ाक जदि आम निकट जदि ना ताहेले आम जीवन को आम सजीव पवित्र एवं ईश्वर को सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर आम सुग्राह्य हो पारिबा नाही जदि ईश्वर वाक्य आम निकट जदि ना जदि पवित्र आत्मा फल जदि आम जीवन जदि ना एवं आम जीवन जदि ईश्वर सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्गीकृत हो पारुना बा युक्तियुक्त उपासना अनुसार आम जदि निज जीवन को गठन कर पारुना ताले निश्चित भाव से दुखित हेबे। आरु एही आम जदि आम शरीर को सजीव पवित्र ईश्वर सुग्राह्य बलि रूपे जदि उत्सर्ग करुअछु यह केतेबेले सुग्राह्य बलि हेबो जेतेबेले वाक्यर परिपूर्णता आम जीवन देखा पवित्र आत्मा परिपूर्णता आम जीवन देखा पवित्र आत्मा फल जदि आम जीवन में देखा अन्य लोक मैंने देखी पारे निरीक्षण करें ज्ञात हो पारे उपलब्धि करें एवं आम कार्यकलाप देखी अन्य लोक मैंने आकृष्ट हो ईश्वर निकट निकटतर होते अनेक हजात्मा शेष आत्मा जिणा जा पार अनेक लोक आम द्वारा दे शारीरिक भाव में आत्मीय भाव उपकृत होते यह युक्तियुक्त उपासना यह आम माने ईश्वर सुग्राह्य बलि रूपे आम उत्सर्ग करुच्छे धरा जदि आम शरीर सजीव पवित्र जदि ईश्वर सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्गित हो पारुना ताले निश्चित भाव से आम जीवन से महिमा माने दुखित हेबे बा दुख करेंगे से महिमान्वित हेबे नहीं से केतेबेले महिमान्वित हेबे जेतेबेले आम प्रचुर फल फलिबा ए समस्त वाक्य ए समस्त गुण ए समस्त प्रकार परमेश्वर जो आदेश अच्छी शिक्षा चेतना उपदेश अच्छी ए समस्त विषय जदि आम जीवन देखा ताले निश्चित भाव में परमेश्वर आम जीवन महिमान्वित हेबे से निमित्त यीशु कहले तुम्हें जदि प्रचुर फल फलिले मोहर पिता महिमान्वित हेबे। आम दिन मानक देखू कि भाव में फल फलुचु क्यों क्यों फल गुड़ाक आम जीवन देखा आत्मिक फल आम जीवन देखा ना आम जीवन शारीरिक फल देखा आम जदि प्रेरित आम जो चतुर्थ विषय देखा प्रेरित तार 2 पर्वर जोटा कि 42 पद लिखा जाए आद्य मंडल लोक मान जीवन किपरि परमेश्वर संतुष्ट है भाई से कार्य करते किपरि से जीवन फल थिला क्यों फल से नीति प्रतिदिन जीवन यापन करुले आम 42 पद देखा से प्रेरित मान शिक्षा सहभागित रोटी भांगारे और प्रार्थना कर निविष्ट चित्त थे। आज आम जीवन देखू यही फल आम जीवन अच्छी कि आद्य मंडल विश्वासी और विश्वासी मान जीवन यही फल थिला से नीतिदिन प्रत्येक दिन शिक्षा परमेश्वर वाक्य शुणवे सहभागित परमेश्वर लोक सहित सहभागिता कर रोटी भांगारे यीशु ख्रीष्ट मृत्यु जन्म मृत्यु को स्मरण कर
प्रार्थना करिवारे जेकोसी समस्या आसु संकट आसु परिस्थिति आसु से मनुष्य ऊपर भरोसा न करी से परमेश्वर ऊपर संपूर्ण भाव भरोसा करी ए समस्त विषय से निविष्ट चित्त थिले एई फल ए दिन मानकरे आमानक जीवन मध्य निहाती रहिबार आवश्यक रही अछि एहा हला सब आत्मांकर फल एई फल आमानक जीवन परमेश्वर चाहंती सेतिने मध्य यीशु डायरेक्ट कहउछंती जे मुठारे रुहे मुता ठारे रुहे आमे जेदा पढुतिला जौन लिखित सुसमाचार तार 15 पर्व रे जे मुठारे रहे मुता ठारे रहे मोर वाक्य जदि तुम मान निकट रे रहे आमे से 6 पद रे देखुतिला जदि तुम मन मुठारे रुह आ मोहर वाक्य तुम मान निकट रे रहे 7 पद रे आमे देखुछु जदि तुम मन मुठारे रुह आ मोहर वाक्य तुम मान ठारे रुहे ताहले जे कोन से विषय इच्छा करथा मागो आ तुमान को निमंते ताहा साधित हेबो ए वाक्य केते बेले आमान के जीवन साधित हेबो जेते बेले परमेश्वर आमान के जीवन समस्त प्रकार फल देखिबे ए समस्त फल जेते बेले आमान के जीवन उत्पन्न हेबो ए समस्त हमर विश्वासी मान के जीवन ए समस्त शाखा प्रशाखा जेते बेले समस्त फल फलिथिबो ए जेते बेले परमेश्वर आमान को निरीक्षण करूथिबे देखुथिबे ए समस्त फल आमान के जीवन जदि देखा जाउथिबो ताहले से महिमान्वित हेबे ताले से खुशी हेबे ताले से आनंदित हेबे जेते बेले जदि तुम मोठारे रुह हम जदि ताको ठारे जदि रहिबा बोले वाक्य द्वारा जदि हम रहिबा ताकर वाक्य द्वारा जदि परिचालित होतबा ताकर वाक्य द्वारा जदि हम जीवन यापन करूथबा आ जे कोनसी समस्या आसु संकट आसु परिस्थिति आसु जदि वाक्य आमान को निकट रे जदि अछि जदि मोहर वाक्य तुम मान को निकट रे रही जदि परमेश्वर वाक्य जदि आमान को निकट रे रहितिबो निश्चित भाव रे आमे परमेश्वर संतोष पात्र होई परिबो आमे देखो परमेश्वर पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे परमेश्वर पुत्र हेले मध्य शेष रक्त बिंदुवा पर्यंत परमेश्वर समस्त इच्छा योजना संकल्प बा समस्त फल तांको निकट रे प्रकाशित होइतिला जन्मरु के सर्पित होवा पर्यंत स्वर्गारोहण करिवार पर्यंत परमेश्वर आज्ञा अनुसार इच्छा अनुसार योजना अनुसार से निजर जीवन को अतिबाहित कले एवं परमेश्वर इच्छा को सफल कले आ दिन से दिन स्वर्ग बाणी हैला जे एही हमर प्रिय पुत्र यहाँ ठारे हमर परम संतोष प्रिय बंधुगण तद्रूप आम जदि आमर जीवन को जदि परमेश्वर इच्छा अनुसार जीवन यापन करिबा परमेश्वर जहाँ चाहूछंती आमान जीवन ताहा जदि प्रकाशित हेबो परमेश्वर जो फल पाइबा निमंते आमान जीवन रे चाहूछंती सेही फल जदि आमानकर जीवन जदि देखा जिवो सेही फल जदि रे पड़िबा से फल रे आमे जदि परिपूर्ण हेबा से फल अनुसार आमे जदि निज को अतिबाहित करिबा आ से जेते बेला देखिबे निश्चित भाव रे आमानकर जीवन से महिमान्वित हेबे प्रिय बंधुगण फल तो दुई प्रकार फल निश्चित गोटे फल जागतिक फल अच्छी जो फल विषय में कहूली आत्मिक फल जोटा कि आप मान कहली गोटे फल अच्छी भल को कह जाए आ गोटे फल को कह जाए खराब फल आ गोटे फल को ब्लेसिंग फल कह जाए आ गोटे फल को जोटा कि अभिशाप फल बोली कह जाए आम आज कौ फल को नहीं जीवन यापन करुछु यही समस्त ईश्वर वाक्य को नहीं पवित्र आत्मा फल को नहीं आम युक्तियुक्त उपासनार फल को नहीं प्रत्येक दिन आम जीवन को प्रेरित मान सदृश्य आद्यमंडल लोक मान सहित शिक्षा सहभागित रटी भांगे प्रार्थना करें समस्त विषय यही समस्त गुण यही समस्त वाक्य को नहीं आम जीवन यापन करुच्छे कि दैनंदिन जीवन में समस्त फल आम जीवन में देखा जाऊँगी कि आज आम मंडली रे आम लोक मान सम्मुखें परमेश्वर सम्मुखें आम यही फल आम फली आम फलीछु यह परमेश्वर देखी पारुछंती कि अन्य लोक माने जानी पारुछंती जे समस्त फल जदि आम निकट जदि नहीं ताहले से दिन जागतिक भाव में कृषक जेपरी फल न फलिबार द्वारा से शाखा प्रशाखा को काटिदेले से गछ को बाहर करदेले एक दिन आसब हम जदि प्रकाशित वाक्य आम तार 22:12 आम गोटे देखुछु प्रकाशित वाक्य 22:12 लिखा जाए देख आम शीघ्र अच्छु प्रत्येक लोक कर्म अनुसार फल देवा आमर पुरस्कार आम संगे अच्छी जदि से प्रथम फल वाक्य से द्वितीय फल आत्मा फल तृतीय विषय सुग्राह्य बलि रूपे जदि आम आम जीवन को उत्सर्ग करना युक्तियुक्त उपासना जदि करूना आद्यमंडल लोक मान जदि आम प्रति भांगारे प्रार्थना करें शिक्षा सहभागिता जदि निविष्ट चित्त जदि ना ये समस्त फल जदि आम निकट जदि जहाँ परमेश्वर चाहू अच्छा पंचम फल विषय समय कम अच्छी
जोटा कि आ गोटे विष पंचम फल जोटा कि आम पाउछु जेनटा कि श्रेष्ठ दुईटी आज्ञा ताहा मध्य आम जीवन रहिबार अछि अपना समस्त मन करण अंत प्राण दे परमेश्वर सेवा कर द्वितीय आज्ञा सेटा भी गोटे फल आम जीवन रहिबार अछि जे पड़ोसी के आत्मतुल्य प्रेम कर जहाँकि पवित्र आत्मा प्रथम गुण सेटा प्रथम फल आम जीवन यदि प्रेम आम जीवन जदि नाही ताहले आम कौन सी फल फड़ी पारिबा नाही कारण विश्वास भरोसा एवं प्रेम ए तीनटा मध्य प्रेम है उत्कृष्ट तेणु आम देखू ए दिन मान समस्त फल आम जीवन अच्छी कि ना जदि आम जीवन जदि ना ताले निश्चित भाव आम क्यों फल आम जीवन यापन करुँ कौ फल आम जीवन देखा क्यों फल आम दैनंदिन जीवन में बढ़िया निमंते आम निज निज को आम प्रस्तुत करुँ आत्मिक फल जहाँ परमेश्वर देखी महिमान्वित हेबे कि शारीरिक फल आम जीवन यापन करुँ आम जीवन जदि अच्छी सहित बास करने निमंते परमेश्वर सहित संयुक्त होगा निमंते परमेश्वर राज्य प्रवेश करने निमंते अनंत जीवन अधिकारी होगा निमंते कौन प्रकार आम व्यवस्था टेकाई पार ना तो आम देखु दिन मान क्यों फल आम फड़ीछु जीवन यापन करूँ कौ फल आम जीवन देखा या तो शारीरिक फल आम जीवन यापन करूँ ना आत्मिक फल आम जीवन यापन करूँ यदि आत्मिक फल जदि आम जीवन यापन करूँ निश्चित भाव में परमेश्वर महिमान्वित हेबे एवं आम अनंत जीवन अधिकारी ही पारिबा कारण प्रथम फल आम से वाक्य विषय अनुसार पढ़ुला ये वाक्य जदि आम जीवन अच्छी ताले समस्त विषय आम जीवन में साधित हो पार शारीरिक क्षेत्र में जागतिक क्षेत्र में आत्मिक क्षेत्र में आम अनंत जीवन में अधिकारी हो पार आशा आप जदि आत्मा फल जदि आम निकट में ना ताले आम क्यों फल आम जीवन अच्छी जो फल द्वारा कि परमेश्वर देखिले आम दीक्षित हे आम जो देखा से गालातिया 5:19 शरीर कार्य गुड़ा तो स्पष्ट रूपे जाना व्यभिचार असुचिता कामुकता प्रतिमा पूजा कुहुक शत्रुता विवाद द्वेष क्रोध स्वार्थपरता दलभेद मतभेद ईर्षा मतता रंगरस इत्यादि प्रकार कर्म गुड़ाक मु पूर्व जेपरी तुमको कही से आगु कहूँ जो मैंने यही सब प्रकार कर्म करती से ईश्वर राज्य अधिकारी हे ना तो बंधुगण यही प्रकार फल जदि आम जीवन जदि अच्छी ये फल गुटिक जदि आम जीवन जदि अच्छी ये फल गुटिक अनुसार आम जदि आम दैनंदिन जीवन जदि आम जीवन को आम अतिबाहित करूँ ये शारीरिक फल जदि आम निकट में देखा जी परमेश्वर आम जीवन देखुं ये समस्त विषय ताले से महिमान्वित हेबे ना से खुशी हेबे ना आनंदित हेबे ना से दुख करेंगे से जो आशा नहीं भरोसा नहीं आम को रोपण कर निकटवर्ती हेबा निमंते से आशा जीवन में दुख आनीदेव से दिन जागतिक भाव में कृषक जीपरी फल न फली जो आशा नहीं से वृक्ष रोपण करथिला से फल न फलिबार द्वारा से गछ को जपरी काटी फोपाड़ी दे पड़े देला शेष दिन में आम को सेपरी हेबाकू पड़ो कहीं आम प्रकाशित वाक्य 22:12 देखिला ये शेष दिन में प्रत्येक लोक मान को कर्म अनुजाई फल मिल आज कौ फल आम जीवन यापन कर कौ फल आम जीवन में देखा एवं शेष फल आम कौन अटे ब्लेसिंग अटे अभिशाप अटे कौ फल ब्लेसिंग फल आम जीवन यापन करूँ ना आम अभिशाप फल आम जीवन यापन करूँ ऐश्वर्य कार्य गुड़ाक यदि आम जीवन जदि अच्छी आम अभिशाप फल जीवन यापन करूँ आम स्वर्ग राज्य जीवन चले स्पष्ट भाव में लिखा जाए जे यही सब कर्म गुड़ाक ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नहीं ये सब फल जदि आम जीवन जदि अच्छी आम स्वर्ग राज्य अधिकारी हो पारिबा नहीं जहाँ युक्तियुक्त उपासना अटे जहाँ परमेश्वर देखिले खुशी हेबे जो फल फलिले से महिमान्वित हेबे से फल आम फलिबार निहाती आवश्यक रही ताहले आम प्रभु शिष्य हो पारिबा एवं सहित आम बास करबा जदि दिन मान करे आम जदि फॉर्मालिटी आम जदि परमेश्वर निकटवर्ती होउछु खाली फॉर्मालिटी भाव में आम जदि खाली गिरजा प्रार्थना करूछु कि बड़दिन मानुअछु कि पुनरुत्थान दिवस को मानुअछु कुशार्पित दिवस को मानुअछु खाली दिवस हिसाब से आम जदि मानुअछु ता आम स्वर्ग राज्य नेब ना से फल आम जीवन में परमेश्वर देखा मत चाहती ना कारण प्रकाशित वाक्य 22 लिखा जाए मैंने 15 लिखा जाए जे कुकुर माने मायावी व्यभिचारी नरघातक प्रतिमा पूजक पुणी मिथ्या प्रिय और मिथ्याचारी माने बाहर रही
आम जदि मायावी भाव छलनात्मक प्रेम आम जदि प्रभु यीशु कृष्ण को करुअछु परमेश्वर वाक्य जदि आम जीवन में ना केवल लोक देखाणिया भाव जदि आम जीवन यापन करुअछु जहाँ परमेश्वर चाहती जो फल गुटिक आम जीवन फलवार कथा ताहा जदि पढ़ुना कि ताहा से जदि देखि पारुना ताले निश्चित भाव आम जड़े जड़े मायावी अटु आम मैंने गोटे गोटे मिथ्याचारी अटु मिथ्या प्रिय अटु प्रतिमा पूजक अटु तांकर सेवा न करी आम अन्यर सेवा करुच्छी शरीर कार्य गुड़ाक जब आम निकट जदि अच्छी शरीर फल गुड़ाक जब आम निकट दैनंदिन जीवन में परमेश्वर देखुंत प्रकाशित होती शैतान कार्य आत्मा फल जब आम जीवन अच्छी जहाँ आम अध्ययन कला गालात्य पुस्तक जहाँकि आम प्रथम जोहन प्रथम पौधारे ये समस्त वाक्य जब आम जीवन जदि अच्छे कलश 3:16 जब आम अध्ययन कला जे ईश्वर वाक्य तुम निकट प्रचुर परिमाण रहू आसु आगामी दिन मान जो फल परमेश्वर आम जीवन चाहती और जो फल देखिले आम जीवन परमेश्वर महिमान्वित हेबे आम निकट प्रकृत शिष्य भाव देखा आम निजे जो सजाड़ू आम जपरी आगामी दिन मान जपरी प्रचुर फल फलिबा परमेश्वर आत्मा परिपूर्णता जब जीवन यापन करवा परमेश्वर देखिए आम जब खुशी हे से निमंते आम एक प्रस्तुत जीवन काटू परमेश्वर मते पुणी आपण मान समस्त आगामी दिन में आम जीवन प्रचुर फल देखा निमंते चाहती जब आगामी दिन मान प्रचुर फल आम जीवन से देखी पारे खुशी होते महिमान्वित होते से निमंते आम समस्त को आशीर्वाद करते नमस्कार धन्यवाद देवी नमस्कार चालक महाशय को ये सुजोग देथिबारु होस्ट महाशय को धन्यवाद देवी मते ये विशेष सुजोग अनुग्रह प्रदान करथिबारु आगामी दिन मान करे मो निमंते मोर परिवार निमंते प्रार्थना करुथिबे आम जपरी आगामी दिन आहुरी फल जपरी फड़ू परमेश्वर राज्य निमंते सेवा निमंते सुसमाचार निमंते निजक व्यवहार करि पारुथिबो एवं परमेश्वर इच्छा जो आम जीवन जब सफल हो पारुथिबो से आम जीवन प्रति विषय प्रति निमिष प्रति पड़क प्रति मुहूर्त महिमान्वित गौरवान्वित प्रशंसित होते से निमंते आम निमंते प्रार्थना करेंगे नमस्कार नमस्कार आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रभु आशीर्वाद करंतु सुंदर वाक्य पाई आम माने प्रचुर फल फलिले आम माने प्रभु महिमान्वित हेबे आम तांकर शिष्य हो पारिबा माने प्रभुंकर अनुग्रह रु आम चेष्टा करिबा प्रभु आउ थरे आमको स्मरण करई दैचती जे आम किपरि प्रकृत रे प्रभुंकर शिष्य हबा सेतिपाई आम समस्ते जाग्रत हेबा सचेतन हेबा कारण दिन मानकरे प्रभुंकर आगमन सन्निकट आम जेपरि प्रत्येक जन विश्वस्त भाव रे प्रभुंकर शिष्य हेबा आ शेष दिन रे से प्रभुंकर निकटवर्ती हे पारिबा सेतिपाई प्रभु आपण आमनको आशीर्वाद करंतु आमे आपनको पई प्रार्थना करिबा प्रभु आपणकर सेवा कार्य परिवार प्रत्येक विषय को आशीर्वाद करंतु आसंतु ए समय आम प्रार्थना मध्य को जीवा आम मध्य मु शेष